Welcome students. You all are welcomed in this e-content session that is created for postgraduate classes by MP Higher Education Department. The lecture that we are going to see is for MSc third semester students of paper 4, that is polymers, and the topic that we will cover under this lecture is Introduction to Polymers. Myself, Gagandeep Kaureen, Assistant Professor, Department of Chemistry, Jawaharlal Nehru Government Degree College, Badwa. Let's see what is the prerequisite for this PPT. You just have a basic knowledge of chemistry. You need not to know much about polymers because this is an introductory part. You just have a basic knowledge of chemistry and then you will be able to understand what we will going to see under this lecture. After completing this module, students, you will be able to understand what polymers are, what are their different types, the structure of polymer, various properties that are connected with them, and various type of polymerization reactions. We have an introductory part of the polymerization reaction in this module, and we will study them in detail in the next module. Let's see first what polymer are, what the word polymer actually means. Poly, it means many, and meros means part. So when you are having number of parts connected together, the chain that they form is known as polymer. Okay, that here in this figure you are seeing these single parts, they are known as monomers. When they combine together, they result into the formation of a chain, and in this way, when n number of monomers they combine together, they result into the formation of a polymer. Polymer they have molecular weights that range from few thousands to many millions. They are large and complex with repetition of small and simple chemical units. And when you see a broader classification of the polymer, you will find that they are of two types, that is biological and non-biological. Then, before beginning this session, just have a look at the history of polymer, that how old they are. See, before 1800, before 18th century also, polymers were there. Okay, the thing is कि हमें नहीं पता था कि ये polymers हैं, लेकिन हम इनका use तब से करते आ रहे हैं in the form of silk, in the form of cotton, in the form of glass. See, in 1839, Charles Goodyear has discovered the vulcanization of rubber. The vulcanization of rubber, I think, आपको ऐसा कहना चाहिए कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च था इन द फील्ड ऑफ पॉलीमर्स बिकॉज द प्रेजेंट डे टायर्स दे आर द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च दैट वाज डन बाय चार्ल्स गुडियर. Then we see bakelite, polyvinyl fluorides, urea formaldehyde resins, then low density polythene, high density polythene. एक थोड़ा सा मैं आपको इसके बीच एक डिफरेंस बता देती हूँ लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का. इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड्स आ गए हैं. लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो इनिशियली डेवलप हुई थी. इट इज़ अ ब्रांच्ड kind of polymer. Okay, it is branched and it is having less number of monomer units as compared to the high density polythene that is linear. Okay, then liquid crystals to carbon nanotubes, so there is a rich history of polymers. Then it is a very interesting question. Sometimes we feel कि हम ये पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों polymers हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है polymers का. तो मैं आपको बताऊं, जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, and you start your day by brushing your teeth, so from the handle of that brush up to its bristles and the tube from which you are getting out your paste, everything is polymer. फिर आप बकेट ले लीजिए, मग ले लीजिए, फिर आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं, आप कोई प्लास्टिक का आइटम यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग योर व्हीकल, द ऑटोमोबाइल्स दैट आर हैविंग टायर्स to reach your destination, your school, your college, everything is consist of polymer. So we can't deny the importance of polymer, the presence of polymer around us. Moreover, they are inexpensive as compared to non-polymeric materials. They can be synthesized from inexpensive and readily available materials. They are strong, long-lasting. They are resistant to degradation and rusting, and they can be reused and recycled number of times. So now we will see the
मेन इम्पोर्टेंस दैट नोबेल प्राइजेस। साइंटिफिक कम्युनिटी में या लिटरेचर हो या मेडिसिन हो, कोई भी हो, नोबेल प्राइजेस जो हैं उनको हम एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल निगाह से देखते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर का इतना इंपॉर्टेंस है कि ऑलमोस्ट 7 नोबेल प्राइजेस जो हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए दिए जा चुके हैं। और रिसेंटली जो लास्ट वन है, इट इज इन 2005, दैट इज फॉर मेटाथीसिस रिएक्शन दैट इज कनेक्टेड टू द पॉलीमर्स। ये हम देख चुके हैं मोनोमर्स, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल यूनिट्स जो आपस में जुड़ती जाती हैं और पूरा एक पॉलीमर बना लेती हैं। उसके अलावा एक टर्म आएगी रिपीट यूनिट्स। Do not get confused with monomers and repeat units. Sometimes we use them synonymously, but they are not synonymous. Mind my words. मोनोमर एक्चुअली, अभी जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि क्यों हम रिपीट यूनिट्स और मोनोमर्स को सिनोनिमसली यूज नहीं कर सकते। क्योंकि रिपीट यूनिट जरूरी नहीं है कि हर एक पॉलीमर में उनका जो कंपोजिशन है वो मोनोमर के जैसा सेम हो। सम टाइम दे लैक सम ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मोनोमर बट दे आर एब्सेंट इन रिपीट यूनिट्स। ओके। उसके अलावा होमोपोलीमर और कोपोलीमर दो टर्म्स हैं। होमोपोलीमर वो पोलीमर है जिसमें मोनोमर जो है वो सिमिलर हैं, लाइक पॉलीथिलीन, ठीक है, उसमें सिर्फ इथिलीन इथिलीन आपको मिलेगा थ्रू आउट द पॉलीमर चेन। पीवीसी, उसमें आपको सिर्फ विनाइल क्लोराइड जो है वो पॉलीमर के फॉर्म में मिलेगा। कोपोलीमर ऑन द अदर हैंड, दे आर द पॉलीमर्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन टू मोनोमर्स। ओके। Next, structural arrangement in polymers. How the polymers are arranged, how their constituting atoms, the groups, the chains that are present in the polymers, they are arranged. They are arranged in three ways: isotactic, syndiotactic, and atactic. Okay. See, if you see isotactic, the conformation of the X and Y, if we are having two different side chains in our polymer, then if suppose one is X, another one is Y, if they are arranged in a particular pattern like XY, 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 as you are seeing in the first polymer chain, that arrangement is known as isotactic. Okay. If this conformation get in alternate manner like XY, then YX, then XY, that arrangement is known as syndiotactic arrangement. And if you get a random arrangement, there is no any pattern, no any alteration, then that pattern or that structural arrangement of polymer, it is known as atactic. Now begin with the classification of polymers. Polymers, as they are classified on the basis of source, the structure, mode of synthesis, interparticle forces. Okay, source that I have told you in the initial slide, everything that is present in before us, it can be obtained from two sources. Either it is a natural one or it can be synthesized. It is a synthetic product, that is a product of a lab. Okay, so polymers are also classified into two categories on the basis of source, that is natural, biological, synthetic, non-biological. Okay, then on the basis of structure, don't confuse with the initial slide of our structural arrangement. This structure is just that how the polymer appears, either it is linear or it is branched or it is cross-linked. Okay. Next is mode of synthesis. On the basis of synthesis, you can classify polymers, addition and condensation, then interparticle forces. They may be elastomers, they may be fibers, they may be thermosetting, they may be thermoplastics. Let's begin with the first classification, that is on the basis of source, that I have told you, natural polymer that you will obtain from either plants or animals. Synthetic, simple, that can be synthesized in lab like PVC, nylon, bakelite. Now see, when you see the natural polymers, you will find that you are surrounded by the polymers like proteins, your nucleic acids, your starch, cellulose, lignin, sand, glass, everything, they are the polymers and they are of natural origin. Next one is classification on the basis of structure, that I have told you. It is divided into three types, that is linear, then your branched and cross-linked. Linear, as its name says, एकदम सीधी chain, ठीक है, a straight chain of a polymer. Like if you are having, अगर आपके पास वो मोतियों की माला है, just make it like this, that is the linear polymer. These polymers, they have high melting point, they have high density and high tensile strength.
Examples you can see polythene, and as I have told you that high density polythene, it is having a linear structure. Then polystyrene, PVC, nylon, they all are linear polymers. Branched polymers, like if you are having, for example, if you are having a linear polymer and you are having some branches, okay, along this main chain, then that polymer is known as branched polymer. So branched polymer, with increase in branching, crystallinity decreases. Branching is also of two types, comb-like and dendrite-like. Comb-like कंघी सबने देखी है, एक ऐसा रहता है और सारे उसके जो बाकी हैं वो एक ही साइड पे रहते हैं, कॉम जैसी रहती है, ओके। और डेंड्राइट लाइक कि आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक पेड़ है, पेड़ से बीच में उसका एक मेन एक्सेस है, दैट इज अ मेन पॉलीमर चेन, फिर उससे ब्रांचेस निकली हैं, फिर उन ब्रांचेस से फर्दर ब्रांचेस निकली हैं, और या आप उसको डेंड्राइट, जो हमारा नर्वस सिस्टम रहता है, उसमें जो हमारा नर्व सेल है, उससे आप समझ सकते हो कि बीच में आपका सेल है, फिर उससे बहुत सारी ब्रांचेस जो है निकली हुई हैं, आगे इसका स्ट्रक्चर भी है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो लो डेंसिटी पॉलीथीन, इट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर। नेक्स्ट वन इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। देखिए, अगर हम केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों की जो हमें कहना चाहिए कि डेफिनेशंस जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनके नाम में ही हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या हो सकता है। लाइक यहाँ पर है क्रॉस लिंक पॉलीमर, अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर की, तो मतलब वहाँ पर कुछ क्रॉस लिंकिंग्स होंगी। Okay, so polymer molecules, they are linked to each other at points other than their ends. They have cross linkings. अब cross linkings अगर कम है, it is having a light cross linking. Then what property it imparts? It imparts good recovery, that is elastic property to the polymers. Like rubbers, you can stretch them. It imparts some elasticity, the cross links which are present in them, and when you release, it get back to its original shape. Then high density, high degree of cross linking. When there is a high degree of cross linking, much cross linking is there, then that cross linking, it imparts high rigidity and dimensional stability. Okay, so the examples you can see, they are phenol formaldehyde, urea formaldehyde polymers. They are highly cross linked polymers. See, नीचे आपको तीन अलग अलग दिख रहे हैं, ब्लू जिसमें सर्कल्स हैं। पहला वाला जो है वो लीनियर चेन को बता रहा है, सेकंड वाला इट इज शोइंग ब्रांचिंग, इसमें दो आपको बताया मैंने, कॉम्ब लाइक एंड डेंड्राइट लाइक, और तीसरा जो आपको स्ट्रक्चर बता रहा है वो है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का। See, it is low density polythene that is having branched structure. Some ethylene molecules, they are present. This is the main chain. Okay, this is the main chain, and some ethylene molecules, they are present over here. So it is a low branched polymer, that is low density polythene. It is a example of cross linked polymer, that is bakelite. You see their cross linkings are present over whole of this polymer chain. Okay. Then classification on the basis of mode of synthesis. Okay, so mode of synthesis, this polymers, they were originally classified by Carothers in 1929, and he classified polymers into addition as well as condensation polymers. So what they are, let's have a look. Condensation polymers, they are formed by elimination of small molecules such as water, ammonia, or HCl. So when polymer is forming and some neutral molecule is getting out, the polymer that is formed, you can say it is a condensation polymer. But in addition polymer, there is no any loss of molecule. The repeating units that are present in condensation polymer, they lack certain atoms in them, because we have seen that it is formed by loss of some molecules. So obviously जो repeating units हैं, उनमें कुछ atoms या कुछ elements जो हैं वो नहीं होंगे जो कि monomers में present थे initially. But addition polymer की अगर आप बात करें, तो addition polymer में जो repeat units हैं, they have same composition as of monomer, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी neutral molecule का loss नहीं हुआ है in case of addition polymer. Then molecular mass, now comes the difference. Degree of polymerization, जब मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम easily molecular weight कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं polymers का जिसमें किसी भी तरीके के एटम या मॉलिक्यूल का कोई लॉस नहीं हुआ है। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल जाते हैं जो रिपीट यूनिट्स में एब्सेंट होते हैं, या ऐसा कहा जाए कि पॉलीमर चेन में कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एटम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मास हम डायरेक्टली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन
से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते, लेकिन एडिशन पॉलीमर्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। एग्जाम्पल्स तो आप लोग अब फैमिलियर हो ही चुके हैं कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर्स के, और नीचे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके मैंने दिए भी हैं। ये आपको जो दिख रहा है इक्वेशन, इट इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमर। लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर हमने एक रिएक्टेंट लिया है, एक मोनोमर यूनिट ली है जिसमें OH ग्रुप है और एक ली है जिसमें Cl है, सो विद द लॉस ऑफ HCl द पॉलीमर इज फॉर्म्ड एंड दैट पॉलीमर इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट वन आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने टेट्राफ्लोरोइथिलीन लिया है and we get the polymer of this in the form of addition polymer। जो हमारी मोनोमर यूनिट यहाँ पर थी CF2CF2, हमारा जो पॉलीमर बना है उसमें वो मोनोमर यूनिट आपको दिख रही है कि रिटेन्ड है, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके के एटम का कोई लॉस नहीं हुआ है। एंड इट इज एग्जांपल ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक वेयर्स हमारे रहते हैं, नॉन स्टिक कुकिंग पैन्स जो रहते हैं उनमें जो कोटिंग रहती है, दैट इज टेफ्लॉन एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस एडिशन पॉलीमर। Next is classification of the polymers on the basis of interparticle forces. I have shown you they are classified into 4 types like elastomers, their fibers, thermosetting and thermoplastics. Let's have a look at elastomers first. Elastomers, see उसके नाम में ही उसकी property है कि इसमें elasticity होगी. The polymers that are having elasticity, they are known as elastomers. So generally they are amorphous that can undergo large and reversible elongation. So elongation कितना हो सकता है, उसका जो size है approximately equal to and less than its 500 to 1000% of times. इतना आप उसको elongate कर सकते हो, इतना आप खींच सकते हो इसको, और जब आप उसको छोड़ोगे it get back to its original shape. Cross linkings are present and some inorganic fillers are also there in the elastomers like carbon black and silica. It has high modulus, that is stiffness, stiff होते हैं, and high tensile strength on full stretching. Underline this line, underline these words, sorry. When you stretch them fully, when they are in full stretching condition, उस वक्त पे उनका जो stiffness है या उनकी जो tensile strength है वो बहुत ज़्यादा होगी जब आपने उसको fully stretch कर लिया है, okay? Under stretched condition, not under normal condition, but under stretched condition. नेचुरल रबर, उसमें जो क्रॉस लिंकिंग्स होती हैं सल्फर की, that is commonly known as vulcanization of rubber. It provides its strength and elasticity. Here you can see the example. These disulfide linkages which you are seeing in the natural rubber, between the natural rubber polymer, that provide its elastic properties. That's why जो रबर है वो थोड़ा सा जो है प्रेस हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जब व्हीकल चल रही है और अगर उसका जो टायर है वो थोड़ा सा इलास्टिक नेचर का नहीं होगा तो वो बर्स्ट हो सकता है, फूट सकता है, क्योंकि वो जो है वो प्रेशर को अपने ऊपर नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट वन, fibers. Fibers that I am wearing, your dresses which you wear, it is example of fiber. It has very high resistance to deformation. आप आपके कपड़े को एक लिमिट तक स्ट्रेच कर सकते हो, बट नॉट आफ्टर दैट। अगर आप खींचने की कोशिश करोगे इट विल नॉट स्ट्रेच बट गेट टियर्ड ऑफ, फट जाएगा वो। It has a very high modulus and tensile strength in normal shape. That's why I have told you to underline that word in the initial slide of elastomer in the stretched condition. वहाँ पर उसका जो modulus है, जो tensile strength है, वो फुल्ली स्ट्रेच्ड कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फाइबर के केस में जब नॉर्मल शेप में है वो मटेरियल, तभी उसका मॉड्यूलस और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप उसको बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते, इलास्टिक प्रॉपर्टीज उसमें कम होती हैं। दे आर हाईली क्रिस्टलाइन and contain polymer chains with strong secondary forces. Example, polyhexamethylene adipamide, that is your nylon 66. बहुत अच्छा फाइबर है, एग्जाम्पल है वो, और शायद मुझे लगता है नायलॉन के बिना हम बहुत सारे हमारी जो ड्रेसेस हैं उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। देखिए इसमें ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, थर्मो मींस हीट एंड सेटिंग जो सेट हो गया। तो अगर कोई ऐसा पॉलीमर है जिसको आपने हीट किया एंड उसके बाद में वो सेट हो गया, और सेट होके उसने एक ऐसा मटेरियल बना लिया दैट इज इनफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल। तो
ऐसे जो पॉलीमर्स होंगे कि जो हीट करने के बाद में जो उनका शेप हो गया, अब वो उसी शेप में रहेंगे, सॉलिड हो गए, अब आप उनको उनके शेप को चेंज नहीं कर सकते, हीट किया और वो सेट हो गया, दैट इज थर्मोसेटिंग. So presence of covalently cross-linked and thermally stable network is there in thermosetting polymers. Formaldehyde condensation products with phenol or with urea or melamine. They are the examples of thermosetting polymers. Electric boards, car parts, plywood, fireboards, they all are containing thermosetting polymers. Generally जो हम घर में स्विच बोर्ड्स होते हैं ना हमारे, वो thermosetting polymer के रहते हैं, और वो इस तरीके से वो पोलीमर होता है क्योंकि हमने देखा कि एक बार वो गर्म हो गया, सेट हो गया, फिर उस पर हीट का इफेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए वो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत कुछ स्पार्किंग हो भी जाए तो वो झट से आग ना पकड़ लें और आग पकड़ के वो मेल्ट ना हो जाए. ठीक है, इसीलिए उनमें जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का यूज किया जाता है. नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक्स. अब यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अब वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. कहते हैं ना, शब्दों को ध्यान से सुनिए या शब्दों पे ध्यान दीजिए, वही बात है, थर्मो एंड प्लास्टिक. तो ऐसी चीज़ जिसको अगर आप हीट करते हो तो वो सॉफ्ट हो जाए, फ्लो उसमें आ जाए, मतलब वो प्लास्टिक जैसा बिहेव करे, कि आपने उसको गर्म किया, वो मेल्ट हो गया, आप उसको किसी भी शेप में ढाल लीजिए, ठंडा करके यूज कर लीजिए, देन अगेन उसको हीट कर लीजिए, फिर आप उसको मोल्ड कर लीजिए, वो मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. सो दीज टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. They don't have cross-linkings, they are uncross-linked plastics capable of reversible changes on heating and cooling. Examples, polystyrene, PVC. polystyrene एक मैं आपको बता देती हूँ, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं हो, लेकिन जब मैं बताऊंगी तो आप लोग, ओह ये पॉलीमर था. जो व्हाइट कलर के कप्स आते हैं ना, थोड़े थर्माकोल टाइप के, जिसमें आप गरम दूध या गरम चाय जनरली सर्व की जाती है या कॉफी दी जाती है, दैट इज पोलीस्टाइरीन. अब आप सोच लीजिए कि पॉलीमर का कितना इंपॉर्टेंस है, और यही शायद वजह है कि क्यों आपके कोर्स में पॉलीमर को एज ए सेपरेट पेपर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है. नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स. जैसा कि हमने देखा, थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं वो गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, इजीली फ्लो करने लग जाते हैं. ओके, सो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं कि अगर कोई पॉलीमर ऐसा है जो जनरली सॉफ्ट नहीं हो पाता है या उसमें फ्लो प्रॉपर्टीज नहीं आ पाती हैं, और आपको चाहिए कि आप इसी पॉलीमर को थर्मोप्लास्टिक के फॉर्म में यूज करो, सो वी आर प्लास्टिसाइजर्स. व्हाट प्लास्टिसाइजर्स डू, दे रिड्यूस द intermolecular forces that are present between the polymer chains. और जब वो ऐसा करते हैं, वो इंटरपार्टिकल फोर्सेस को जो है वो रिड्यूस करते हैं, तो एक इंटरनल लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग द फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स. So what they do, they improve the flow, they provide flexibility and reduces the brittleness of the products. Example जैसा आप स्क्रीन पे सब लोग देख सकते हैं, PVC. When PVC is blended with diisoctyl phthalate, trialyl phosphate, and epoxide oils, it gets some soft properties, some flow properties in it. But ये ध्यान रखिए, जो PVC पाइप्स होती हैं हमारी, ओके, PVC पाइप्स में प्लास्टिसाइजर ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि वो हमको स्टिफ चाहिए. अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी तो पता चले वो बहुत ज़्यादा गर्मी में पाइप ही पिघल गया, है ना. तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है. So plasticizer, they imparts flexibility by acting effectively as an internal lubricant between the polymer chains. See, next one. So what properties should plasticizer have? हम किसी भी कंपाउंड को प्लास्टिसाइजर यूज नहीं कर सकते, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. एक तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो पता चले आपने कुछ ऐसा प्लास्टिसाइजर के फॉर्म में ऐसा कंपाउंड ऐड कर दिया कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पॉलीमर से भी लो है, तो वो हमारे पॉलीमर की क्वालिटी को खराब कर देगा. वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी केमिकली इनर्ट, नहीं तो वो एटमॉस्फेरिक एयर से हो सकता है रिएक्ट कर जाए, हो सकता है हमारे पॉलीमर से ही रिएक्ट कर जाए. Okay, so it should be chemically inert, should not have any smell or taste, should be stable, should be insoluble in water, compatible with the polymer, and should not be affected by light. So examples जो हैं बहुत सारे प्लास्टिसाइजर के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैम्फर, डाइब्यूटाइल थैलेट, और कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स जो हमने पिछली स्लाइड में PVC के लिए देखे थे, वो भी जो हैं हमारे प्लास्टिसाइजर्स के एग्जाम्पल्स. अब हम कुछ एडिटिव्स देख लेते हैं. पॉलीमर के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका क्लासिफिकेशन है.
अब यहाँ पर हम कुछ एडिटिव्स देख रहे हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो पॉलीमर के साथ में मिक्स किए जाते हैं या मिक्स करना ज़रूरी है। पहला है हमारा फिलर। फिलर्स क्या करते हैं? दे एनहांस डायमेंशनल स्टेबिलिटी, पॉलीमर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे affect its resistance, tensile and compressive strength in a positive way. Make them abrasion resistance के हिसाब से जो polymer है वो जल्दी खराब ना हो. Make it thermally stable. And fillers that are used, they are again of two types, particulate as well as fibrous. So particulate fibers, they are silica products, silicates. Okay, some inorganic compounds are also used as particulate fillers like chalk, limestone, alumina, magnesia, etc. And fibrous fillers, again the word fibrous is there, so these fillers, they are some sort of fibers like cellulosic fibers, the names that are displaying on your screens. Next, antioxidants. जैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के इंटरनल सेल्स को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, लाइकवाइज पॉलीमर्स को भी एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि पॉलीमर्स का ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि पॉलीमर्स जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको इनर्ट कंडीशन में यूज़ करेंगे, हम उसको नॉर्मल ओपन एटमॉस्फेयर में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर एयर है, ऑक्सीजन है ना, वो उनसे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ फिनोल्स, एरोमेटिक अमीन्स एंड इट्स सॉल्ट्स। कलरेंट्स तीन तरीके का काम कर सकते हैं, आइदर दे मेक पॉलीमर ट्रांसपेरेंट, दे क्रिएट ओपेसिटी, और दे में प्रोवाइड कलर टू द पॉलीमर्स। एग्जाम्पल्स जनरली पिगमेंट्स जो हैं, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स लाइक थैलोसाइनिन्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बेरियम सल्फेट, क्रोम ग्रीन, येलो एंड कार्बन ब्लैक. These are the examples of the colorants that do either make the polymer either transparent, opaque or colored. Then flame retardants. देखिए फ्लेम रिटार्डेंट्स जब मैं कह रही हूँ उसका मतलब कि वो पॉलीमर की जो आग लगने की कैपेसिटी है ना उसको कम करेंगे, है ना। एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, फॉस्फेट एस्टर्स जो हैं, ये सब क्या करते हैं, अगर आपने किसी पॉलीमर में ऐड किए हैं तो वो उसको थोड़ा सा फ्लेम रिटार्डेंट कर देते हैं, मतलब कि जल्दी से वो जो है पॉलीमर हमारा आग नहीं पकड़ेगा अगर उसमें हमने ये वाले जो एडिटिव्स हैं उनको ऐड किया होगा। नेक्स्ट, स्टेबलाइजर्स, नाम से ही क्लियर है, ऐसे एडिटिव्स जो हमारे पॉलीमर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेकिंग देम स्टेबल, लाइक कार्बन ब्लैक। इसका यूज क्या है? इट प्रिवेंट्स फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन इन पॉलीथीन। पॉलीथिलीन में कार्बन ब्लैक जो है एज अ फिलर एडिटिव यूज होता है, वहां पर कार्बन ब्लैक क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन उसका रोकता है। Then hydroxybenzopheноls, they are UV light absorbents, and what they do, they improve the light stability of both plastic and their colorants. So these are some of the examples of stabilizers. अब हम आते हैं physical properties that are associated with polymers. दो physical properties जो हैं वो बहुत ही important हैं जो polymers में देखी जाती हैं generally. One is crystalline melting point and another one is glass transition temperature. Let's begin with the crystalline melting point. जैसा कि उसमें आपको समझ में आ रहा है, crystalline melting point मतलब कि जो हमारा crystalline polymer है उसका melting point. ओके, इक्वेशन आप नीचे देख सकते हैं, फ्री एनर्जी की इक्वेशन है ये जनरली, और जब मेल्टिंग होती है उस वक्त जो फ्री एनर्जी है प्रोसेस की, दैट बिकम जीरो। सो अंडर दैट कंडीशन जो हमारा पॉलीमर है, जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऑन एंथैल्पी एज वेल एज ऑन एंट्रोपी. So what are the factors that affect the crystalline melting point? Higher the stiffness of the polymer chain, higher is the melting point. Obviously अगर कोई मटेरियल बहुत हार्ड है, सॉलिड है, तो ऑब्वियसली उसको मेल्ट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा. इंक्रीज इन द साइड चेन डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम साइड चेन का नंबर जो है बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, साइड चेन को इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी. लेकिन अगर बल्कीनेस आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आप बल्कीनेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पर अगर हम साइड चेन को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, लेकिन हम अगर साइड चेन की बल्कीनेस को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा. तो दो अलग अलग चीजें हैं. अभी आगे एक एग्जांपल आपको मैं टेबल में शो करूंगी तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. अगर साइड चेन का इंक्रीज हो रहा है
तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। बट अगर साइड चेन में हम बल्कीनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, जो ग्रुप्स हैं उनको बल्की ग्रुप्स लगा रहे हैं हम वहां पर, तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इसमें, अगर सब्सटीट्यूशन में हम साइड चेन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लाइक हमने CH3 लगाया, फिर हमने CH2 CH3 लगाया, फिर हमने CH2 CH2 CH3 लगाया, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द साइड चेन सिंपली। सो सी, जो उसका TM है, दैट इज क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट, जो है वो कम होता जा रहा है ना, 165, 125, 75। बट अगर आप यहाँ पर साइड चेन की बल्कीनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक आपने पहले एक CH3 ग्रुप उसमें लगाया, फिर आपने 2 CH3 ग्रुप लगाया, या आपने इथाइल लगा दिया, किसी भी तरीके से अगर आपने साइड चेन की जो बल्कीनेस है उसको इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 196 था इनिशियली, आपने उसमें बल्कीनेस बढ़ा दी, एक और मिथाइल ग्रुप उसमें ऐड कर दिया, तो अब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 196 से कहाँ आ गया वो, 350 पे आ गया। सो इस चीज को आप ध्यान रखें, साइड चेन का अगर आप साइज इंक्रीज कर रहे हो, नॉट द बल्कीनेस बट द साइज, अगर आप साइज इंक्रीज कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। But if you are increasing the bulkiness, you are adding the bulky groups on the side chain, then the crystalline melting point will increase for these two compounds that I have shown you. नेक्स्ट वन, द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखिए ट्रांजिशन, मुझे लगता है कि केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को ट्रांजिशन का मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब पीरियोडिक टेबल, जो हमारा कहना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप है केमिस्ट्री की दुनिया में, जब हम वहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें पता है ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्रॉपर्टी टू अनदर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो इस टेम्परेचर को अगर हम ट्रांजिशन कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर वो अपनी एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में ट्रांजिट हो रहा है, मूव हो रहा है। और क्योंकि हमने वर्ड ऐड किया है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब वो अपनी किसी एक प्रॉपर्टी से ग्लास प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहा है। सो टेम्परेचर above which the substance remains soft, rubbery and flexible, and below it becomes hard, glassy and brittle. So that temperature, जिसके ऊपर जो हमारा पोलीमर है वो सॉफ्ट और रबरी रहेगा, और जिस टेम्परेचर से नीचे वो ग्लासी प्रॉपर्टीज अडॉप्ट कर लेगा, like it become hard and brittle, that temperature is known as glass transition temperature. Okay. So represented by Tg that you are seeing on the screens. And when you heat a polymer further, like आपने उसका glass transition temperature आप ले आए, आपने उसे थोड़ा सा increase किया, वो soft और rubbery हो गया, but you go on increasing the temperature, what happens, it forms a viscous liquid and starts flowing. This state is known as viscous fluid state and the temperature is termed as flow temperature. एक था हमारा glass transition temperature, वहां तक आप पॉलीमर को लेकर आए, इट बिकम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। लेकिन अगर आपने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर को और बढ़ाया और इंक्रीज किया, एंड यू गेट अ स्टेट व्हेन इट बिकम्स विस्कस फ्लूइड like compound, then that temperature is known as flow temperature. Next, obviously there may be certain factors that affect the glass transition temperature. There may be increase glass transition temperature, it increase with increase in the molecular weight. Okay, जैसे जैसे आप molecular weight आपके compound का बढ़ाते जा रहे हैं, जो Tg है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। Addition of plasticizers will reduce the Tg. Obviously क्योंकि plasticizers क्या करते हैं, they make the polymer soft. तो अगर कोई चीज़ already soft है तो उसको तो बहुत कम temperature लगेगा ना और soft करने में, तो उसका Tg जो है with the addition of plasticizer वो कम हो जाएगा। TG ऑफ अ कोपोलीमर, क्योंकि कोपोलीमर हमने हमारी इनिशियल स्लाइड्स में देखा था, दे आर फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। सो जो उसका TG है कोपोलीमर का, वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जो नीचे आपको इक्वेशन दिख रही हैं। चेन रिपीट यूनिट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, चेन स्टिफनेस, सिमेट्री, hindrance to the rotation of the polymer chain, etc., they all affects the TG of that polymer. Chain ends with high branching increases the free volume and hence causes lowering of TG. अगर आपका जो चेन है, उसका जो चेन एंड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से भी जो हमारा TG है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर डिक्रीजेस फ्री वॉल्यूम एंड इंक्रीजेस TG, या आप उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी हमारा पॉलीमर जो है वो हार्ड हो जाएगा, तो वहाँ पर जो हमारा TG है, जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आपको उसको और हीट करना पड़ेगा टू गेट इट इन अ सॉफ्ट मैनर।
Next, in these one or two slides, we have just an introductory look to the polymerization reactions. As I have told you that polymerization reactions, they are of two types, condensation as well as addition polymerization. In the beginning, when we see the classification, condensation, these polymer chain, they lack certain kind of monomers, certain kind of molecules from in the repeat units. Okay, it is also it is usually formed by stepwise intermolecular condensation of the reactive groups. And in addition, when the monomer units they are continuously adding with each other, they do so by chain reactions. But don't use stepwise and chain reaction for condensation and addition polymerization respectively. Because अगर condensation और addition polymerization को हम देखें तो ये जो दो टर्म्स हैं ये हमारे पॉलीमर के स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके दी गई हैं और स्टेप वाइज और चेन रिएक्शन जो हम कह रहे हैं ये हम उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है वो स्टेप वाइज होता है इसलिए उसको स्टेप वाइज इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन हम नाम दे देते हैं और जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो चेन रिएक्शन के फॉर्म में होता है तो यहाँ पर हम उसमें जो है चेन रिएक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों जो है सिर्फ कंडेंसेशन और एडिशन तक ही लिमिटेड हो सकता है कुछ केसेस में ये आपस में इंटरचेंज भी कर लें सो don't use them synonymously with the type of polymerization. Next is copolymerization. Copolymerization, when different monomers they polymerize simultaneously. Okay, there are three types of copolymer structures. They may be alternating, they may be in the form of block or in the form of graft. अल्टरनेटिंग अगर आपने एक पोलीमर मोनोमर है फिर उसके साथ में दूसरा मोनोमर है फिर पहला फिर दूसरा अगर वो अल्टरनेटिंग मैनर में मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं तो जो कोपोलीमर हमें मिलेगा दैट इज ए अल्टरनेटिंग कोपोलीमर अगर ग्रुप्स के फॉर्म में है ब्लॉक्स के फॉर्म में है कि पहले ए एक पोलीमर चल रहा है फिर बी दूसरा पोलीमर चला उसके बाद में फिर जो है हमारा ए ऐसे चला तो वो ब्लॉक्स के फॉर्म में अरेंज्ड है दैट इज ब्लॉक कोपोलीमर और ग्राफ्टिंग अगर हो गई है जैसे आप लोग बॉटनी में एग्रीकल्चर में आपने कभी पढ़ा होगा ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी की एक स्टेम है उसके ऊपर आपने किसी दूसरे पौधे की स्टेम रख दी है ना तो यहाँ पर भी वही है कि अगर एक पॉलीमर चेन है और उस पॉलीमर चेन से आपने नीचे दूसरी पॉलीमर चेन अटैच कर दी सो दैट कोपोलीमर इज नोन एज ग्राफ्ट कोपोलीमर so for further reading you students can use these books. I must say these are very good books of Bill Mayer, George Ordian, Manas Chand. You can purchase any of them and you will enjoy learning polymer through them. और इसके अलावा आप मुझे लगता है सब लोग इंटरनेट फ्रेंडली हैं सो अगर आप सिंपली गूगल पे जाकर भी पॉलीमर को सर्च करके बहुत सारा मटेरियल जो है ऑनलाइन आपको अवेलेबल है आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं बट ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन अलॉन्ग विद योर आइज सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है आपको आपके दिमाग को भी ओपन रखना है ताकि आप ये समझ पाएं क्योंकि नेट पे हर एक चीज़ जो दी है मैं नहीं कहूँगी कि वो सही है इसलिए जब भी आप पढ़ें बुक्स ज़रूर रेफर करें और उसके साथ में जो है ऑनलाइन सोर्सेज से भी आप मटेरियल ले लें लेकिन ध्यान रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही हो आप कुछ गलत ना पढ़ें सो दो तीन क्वेश्चंस हैं एक फन टाइप का है क्योंकि इंटरेक्टिव हम अभी नहीं हो पा रहे हैं सो जस्ट एक्सेस योर सेल्फ कि हमने इतनी स्लाइड्स में जो पढ़ा क्या आपको उसमें से थोड़ा बहुत कुछ याद है सो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसिडर अ पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन सिंथेसाइज्ड बाय चेन पॉलीमराइजेशन ऑफ अबाउट 500 मोनोमर यूनिट्स सो व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर हमारे पास स्टाइरीन का पॉलीमर है ठीक है जिसको हमने मेंशन है क्वेश्चन में कि दैट इज सिंथेसाइज्ड थ्रू चेन पॉलीमराइजेशन और जैसा कि हमने पढ़ा कि चेन पॉलीमराइजेशन में किसी भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है ठीक है मोनोमर यूनिट्स और रिपीट यूनिट्स इनमें सेम रहती हैं और उसमें आपसे वो कह रहा है कि उसमें 500 मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट हैं तो आप बताइए उसका अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सो व्हाट यू डू रिमेंबर द स्लाइड ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 500 monomer units and styrene की just calculate the molecular weight of styrene and multiply it by 500 and let's see whether you are getting this answer or not that is 52,000 next question addition of phthalate and phosphates to PVC will dash its Tg that is glass transition temperature when you add phthalates and phosphates to PVC what will happen to its Tg that is glass transition temperature
What happens? It get reduced. Why? Phthalates and phosphates, they are plasticizers. Okay, so when you add plasticizer to any polymer, we have seen that glass transition temperature will get down. So addition of these plasticizers will reduce the glass transition temperature of PVC. Arrange the following substitutions on the basis of their property to increase melting point of an isotactic polymer. आपको इन सब्सटीट्यूशंस को अरेंज करना है इस तरीके से कि इनके एडिशन से पॉलीमर चेन के उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाए. सो दिस विल बी द ऑर्डर. हमने देखा था अगर हमारा साइड चेन बल्की है इट विल इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड तो हमारा जो CH3 ट्वाइस है वो सबसे ज़्यादा होगा. देन जहाँ CH3 एज अ सब्सटीट्यूशन लगा है उसके बाद वो होगा. फिर हमने देखा था कि अगर हम साइड चेन में बल्कीनेस नहीं बढ़ा रहे हैं, सिंपली वी आर इंक्रीजिंग इट्स लेंथ. So what will happen with increase in length? Melting point decreases. और हमें यहाँ पर increasing order में decreasing order में ही उसको रखना है. तो यहाँ पर फिर हम सबसे छोटा वाला जो साइड चेन है मिथाइल वो लगाएंगे क्योंकि वो मेल्टिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा होगा. अगर फिर आपने उसकी जगह इथाइल लगा दिया फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड देन इट कम्स टू प्रोपाइल ग्रुप. So thank you students for your patience listening, and I hope that you all have enjoyed the introductory aspect of the polymers. We will meet again in the second module of the polymer chemistry. Thank you.